कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन हो गई है। अच्छा, Dignitaries, member of industries, on behalf of Board of Apprenticeship Training, Northern Region. So, before we proceed, इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट Mr. Mahmood, Government of Jammu and Kashmir, Directorate of Skill Development, Industries. So they are. So we are very thankful to all the representatives. So they are also important stakeholder because they impart education. Appreciate we thank everyone who are here. We interact with industry don't support us. We industries. On other hand, industry officials say that we don't meet our requirement. So there is a huge playing our own part to bridge this gap, and we are one of them. Uh, sorry. So in November, approved stipendary support fund of 3,054 crores for 5 years, and the target given for us was the duration lasts till 25-26. Sure that in Jammu Kashmir also we'll get good support from the government. Support. So in coming days, we'll be organizing many such suggestions. One of those suggestions was why can't we have a full day program, and that is quite valid. We'll come done lot of reforms. So earlier we were catering to the friendly. For example, earlier as per the Apprentice Act, the apprentices were not allowed to work in say shifts. So usually they were engaged only during general shift, apart from continuous process industries. So now, they have realized that they are they have their facilities and they want optimum utilize. Apprenticeship Act has been amended, and then the apprentices have been allowed to work even during night shift. So that is a very good percentage. In fact, earlier we used to think maybe. का सवाल रहता है कि अप्रेंटिसशिप के बारे में पहले अवेयरनेस नहीं है इंडस्ट्रीज को, अवेयरनेस नहीं है, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज अप्रेंटिसशिप. सो तो इंडस्ट्रीज जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं. कहा नैट्स, हम नैट्स वाले हैं. तो नैट्स है क्या सर? अगर रजिस्टर्ड नहीं रहता है तो जैसे आपने एज ए एस्टैब्लिशमेंट हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया है, उसी में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इस सेशन के बाद विल हैव योर रिकॉर्ड. आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करिए. आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज we in Kashmir have a kind of a different skill set and a different kind of an industry. 3H. One H is our handicraft sector. Then the tourism, which is very critical to the economy, is the hospitality sector. And our handicraft is about 3 to 4. Horticulture is again a very big sector of our economy to the extent of about 10 to 12%. Dignitaries and participants. Actually, when we engage, we usually go to engineering colleges, take some students from there, and then train. I would like to brief our guest from outside to explain what Kashmir society love for the white collar job. Every parent basically wants to have their children either in the Kashmir Administrative Service or doing medicine. Or medicine करने के लिए here is that there are no jobs coming, and jobs are very limited because government is cutting down the rate. Very high IQ children, extremely good awareness levels, and the quality of education being imparted in the university. Government secretary, and we did a survey in 2017. We found out that 3.5 lakh postgraduates, PhD, Department of Skill Development and its vocational training base. When we talk about engineering degrees, diplomas, and our other courses, this plays a very significant
डिपार्टमेंट टू टेक अ मेजर पाई ऑफ दैट शेयर। आजादी के बाद पहले भारत सरकार ने स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम होता था PTS, द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम। जो हमारे पास आउट हैं ITI के, उनको एक अप्रेंटिसशिप टाइप का प्रोग्राम दिया जाए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हम देश के नॉर्दर्न रीजन जो करीब 1/4 भारत है, उत्तर प्रदेश से लेके लद्दाख तक, इसमें हम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का कार्यान्वयन करते हैं। तो हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लगभग हर हफ्ते हमारा कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है। तो हमारे जो भारत सरकार की तरफ से जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी साहब श्री गोविंद जायसवाल जी ने पिछले महीने कार्यक्रम में कहा था कि आप इतना करते हो तो जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या कर रहे हो। और फिर हमारे चेयरमैन प्रोफेसर अभय कारंदीकर साहब हैं, जो डायरेक्टर IIT कानपुर के डायरेक्टर थे और अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, तो वो भी बार बार स्ट्रेस करते थे। तो फिर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स से, फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वगैरह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आज हमने अभी इंडस्ट्री मीट अभी हमारा हुआ था, तो इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स में, मतलब 60 के ऊपर इंडस्ट्रीज़ आई हुई हैं और भी कुछ कंपनीज़ आ रही हैं। और अभी हमारा पैरेलली जॉब फेयर शुरू हुआ है, तो इसमें बच्चे काफ़ी आए हैं, करीब 1000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज उनमें से मैक्सिमम बच्चों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो बच्चे बच भी जाते हैं उनका डेटाबेस हम इंडस्ट्री वालों से शेयर करेंगे और आगे उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएशन है, शुरुआत बहुत अच्छी है, और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर को एक मॉडल मतलब स्टेट कह लें या यूनियन टेरिटरी कह रहे हैं, एक मतलब देश में एक मॉडल के रूप में हम उसको उभार के हम दिखाना चाह रहे हैं। और आज 60 के ऊपर कंपनीज ऑलरेडी वेन्यू पे मौजूद हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं रास्ते में जो पहुंचने वाली हैं। जो जम्मू कश्मीर सरकार की कवायद है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपनी डिग्रीज या डिप्लोमाज लेने के बाद दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी। उनको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए जो सबसे मुख्तलिफ और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम भारत सरकार की है वो है अप्रेंटिसशिप स्कीम। इसमें भारत सरकार का इदारा है जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो वहाँ से SK मेहता साहब और इनकी जो टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमारे जो डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट हैं और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं सुदर्शन जी और महमूद साहब, उनके साथ मिलकर एक ट्राई पार्टी ये हमने इवेंट किया है। इस इवेंट का एक बेसिक पर्पज़ ये है कि जो हमारे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं कश्मीर वैली के, वो सभी इंडस्ट्री प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। लगभग 60 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री प्लेयर यहाँ मौजूद हैं और लगभग 1000 से भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया है। इस स्कीम का ये फ़ायदा ये रहता है कि जो भी बच्चा जो जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट करता है या फिर कोई अपनी बेसिक एजुकेशन लेता है रेलेवेंट इंजीनियरिंग इदारे में, तो वो बेसिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसकी जो नॉलेज में गैप होता है, जिस गैप को पूरा करके वो इंडस्ट्री के लिए रेडी होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए जो ब्रिज है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार बहुत अच्छा एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि जो उसको जो अप्रेंटिसशिप पे खर्चा आता है उसमें लगभग अगर 8000 रुपये का खर्चा उसको आता है, अगर वो डिग्री होल्डर होता है तो 50% को रिएम्बर्स करती है। और इसी तरीके से डिप्लोमा होल्डर अगर 7000 का उसका रकम है तो 50% उसको रिएम्बर्स करती है। तो इंडस्ट्री को ये फ़ायदा है कि एक तो वो स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं जिसको बाद में वो अपनी इंडस्ट्री में भी एंगेज कर सकते हैं या किसी मुख्तलिफ इंडस्ट्री में एंगेज कर सकते हैं, प्लस वो जो खर्चा होता है उस कैंडिडेट पे, उस खर्चे का 50% जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी है वो आपको भारत सरकार की इस स्कीम के तहत मिलती है। जम्मू कश्मीर सरकार ये चाहती है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव करें। आपको पता है कि एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव चल रहा है जिसमें ना सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के अलॉटमेंट में बल्कि कुछ बहुत नए सेक्टर्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम वैली की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज, या फिर हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, या फिर रिटेल इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर वुड बेस्ड इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहा है, और ये जितने भी हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म जो हमारे मेन स्टे हैं, या हैंडीक्राफ्ट, इसमें जितने हमें बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए और उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और एक्सपोजर देने के लिए इस स्कीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जो ये जो कैंप है जो हमने यहाँ पे श्रीनगर पॉलिटेक्निक में किया है, इसके अंदर जो 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। एक तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है जो अपने जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को लेके आया है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनको जो हमारे बच्चे हैं जो कि हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले डिप्लोमास किए हैं, जो अभी डिप्लोमास कर रहे हैं, वो आज सारे मौजूद हैं। और भारत सरकार की तरफ से जो एक बड़ा अच्छा इदारा है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये यहाँ मौजूद है।
ये अपनी स्कीमों के बारे में इन्होंने बच्चों को गाइड किया है, इंडस्ट्री को गाइड किया है, और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम बेनिफिट इसका यहाँ के बच्चे ले पाएँ, वैली के और जम्मू के, ताकि ये इस स्कीम में जो रिएम्बर्समेंट का मॉडल है उसके इंडस्ट्रियल प्लेयर भी अपना उस रिएम्बर्समेंट मॉडल का फ़ायदा उठा पाए। इसमें मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक एफर्ट है, ये एक सीरीज़ ऑफ एफर्ट्स है। पहला प्रोग्राम श्रीनगर में हुआ, इसी तरह के आगे प्रोग्राम्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिसाइड किया कि जम्मू में भी किए जाएंगे। तो जहाँ पे जम्मू में डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है, वहाँ हैवी इंडस्ट्री वगैरह है, कश्मीर में सॉफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, होटलिंग बेस्ड इंडस्ट्री है। आपको पता है कि एलजी साहब के एफर्ट से यहाँ पे बहुत नए कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं। लगभग 10 से 12 बहुत बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे डिज्नीलैंड के आने की भी कवायद है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है नेशनल लेवल पे, जिसको हम ऑर्गेनाइज एजुकेशन सेक्टर कहते हैं। लार्ज स्केल रिटेल सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये जितना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, उसमें जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, जो नौकरियों की रिक्वायरमेंट होगी, तो इंडस्ट्री की जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करके, जो ये हमारा महकमा है भारत सरकार का, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये उस इंडस्ट्री में एक्सपोजर देता है आपको। तो जो आपकी थ्योरी जब आपने पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं इंडस्ट्री के लिए, 1 साल का जो ये प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करते हैं। और पूरी तरीके से शाना बशाना हमारी जो भारत सरकार के साथ जो हमारी डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट, या हमारा जो इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे यूथ हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ जाने के बजाय वो अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाएं और इंडस्ट्री की तरफ जाएं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आगे चल के अगर मौका मिले उनको, तो वो स्टार्टअप भी करें, जिसके लिए भी बहुत सारी स्कीम भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की है। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारे स्टेट के अंदर 54 ITIs हैं और 22 हमारे पास पॉलीटेक्निक्स हैं। इससे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 17,000 बच्चे हर साल डिफरेंट टाइप्स की डिप्लोमाज लेके बाहर निकलते हैं। तो इसके अंदर हमारे स्टेट पे काफ़ी सारे हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। जैसे कि बारामूला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो टाटास के साथ मिलकर हमने बनाया है। उसके अंदर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स वगैरह जो भी बिल्कुल हाईटेक एरियाज़ हैं, उसके ऊपर वहाँ पे इदारे को क्रिएट किया गया। इसी तरह से जम्मू के अंदर भी हमने जम्मू पॉलीटेक्निक में CIIT बनाया है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको मुफ्त में, जो बच्चे हमारे कोर्स कंप्लीट करते हैं, उनको एंड में टॉप अप ट्रेनिंग देने के लिए हम उनको 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए उन CIITs में भेजते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ऑटोमोबाइल के भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं। आप इसी तरह से मुख्तलिफ जो भी नए शोबे आ रहे हैं जिनके अंदर बच्चों की बड़ी लार्ज रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बीच में आपके स्पीच में बताया था कि सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सूर्य मित्र की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने अभी ITI में उस तरह के कोर्सेज को भी डेवलप किया है। अभी आपने जैसे देखा कोल्ड स्टोरेज की हमने बात की, तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर हमें काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है। आज आपने देखा कि एक अमेरिकन ऑन्कोलॉजिकल एसोसिएशन के भी आज रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बोल रहे थे कि हमें कुछ उस तरह के जो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। आप बताइए, जब यहाँ पे 8 या 10 बड़े अस्पताल आएंगे नेशनल लेवल के, चाहे मेडिसिटी या मेदांता टाइप के, तो उसके अंदर बहुत सारे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए इंडस्ट्री को वो सारे टेक्नीशियंस बनाने। इसी तरीके से जो हमारा बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको हम टूरिज्म कहते हैं, आपने देखा है टूरिज्म में बूम हुआ है, लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट मुख्तलिफ एरियाज़ में आए। तो टूरिज्म शोबे के अंदर हमें हर तरह के क्षेत्र में हमें लोग चाहिए। तो हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रेड्स हैं, हमारी कोशिश ये हो रही है कि इंडस्ट्री के साथ उसका कनेक्ट डेवलप किया जाए। तो ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आज हुआ है, इसके तहत ये दोनों का कनेक्ट क्रिएट करने का ये जो बेसिकली एक ब्रिज है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री का, वो हमारे पॉलीटेक्निक की थ्योरेटिकल डिग्री और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल बीइंग, अगर आप लोग सब मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में कोर्स करने के बाद अगर आपको किसी मीडिया कंपनी में आप 1 साल काम करें, तो आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि कैसे क्या स्किल्स की वहाँ रिक्वायरमेंट है। तो वो जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो देने के लिए ये प्रोग्राम है। और इसमें भी इतनी खूबसूरत बात है कि लगभग 50% की रकम भारत सरकार दे रही है। हम कोशिश ये करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी कुछ और रकम उसमें प्रोवाइड की जाए। तो लगभग 8,000 में अगर उसको जो स्टाइपेंड देना है, उस स्टाइपेंड में 4,000 आपको भारत सरकार दे रही है। इससे बेहतर कोई स्कीम मुझे लगता हो ही नहीं सकती। इसके लिए हमें भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के SK मेहता जी यहाँ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाए। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि जो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए जो नॉर्मल आर्ट्स डिग्रीज वगैरह करते हैं, NEP, उसमें बेसिकली आपको पता है कि NEP का जो बेसिक एसेंस है वो ये है कि कोई भी डिग्री जो है वो हर डिग्री मल्टी सब्जेक्ट और इंटर सब्जेक्ट टाइप की डिग्री रहेगी। तो अगर कोई बच्चा नॉर्मल आर्ट्स का भी काम कर रहा है तो उसको तो ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा या उसको साइंस का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर दिया जाएगा। उसके तहत जो जम्मू यूनिवर्सिटी, जो बाकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं JNK की, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी है या IUST है, हमारा उनके साथ टाई अप है कि जो हमने CIIT का जो अपना सेटअप रखा है उसको हमने उनके लिए भी खोला है, या हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके लिए भी खोला है।
प्लस हम उन यूनिवर्सिटीज़ को भी कुछ फिनिशिंग या स्किलिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए उनसे हम इनपुट मांगते हैं। अभी IUST का जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, IUST बाबा गुलाम शाह बादशाह, उनके साथ हमारा टाई अप है। इसी तरह वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाई अप है। तो उनको डिग्री खत्म करने के बाद एंड में जो स्किलिंग रिक्वायरमेंट होता है उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम प्रोवाइड करते हैं विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। मगर इसमें सबसे स्ट्रक्चर्ड अगर कोई इंटरवेंशन हमारा है तो वो ये बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे इनके पास कोई 145 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, एरियाज़ हैं जिसके अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो एक और हम एफर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एक एफर्ट है सेक्टर स्किल काउंसिल्स का। भारत सरकार के लेवल पे 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, जितने भी मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं उनको भी हमने जम्मू कश्मीर इन्वाइट किया है कि वो भी हमारे यहाँ स्किल सर्वे करके जो छोटे स्किल्स होते हैं, जिसमें हम ये डिग्री डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मोबाइल रिपेयर करना है तो उसको सिर्फ वो लिमिटेड सी नॉलेज दी जाएगी कि मोबाइल कैसे रिपेयर किया जाता है। वो जो मॉड्यूलर स्किल्स हैं उसको हम जो हमारी स्किल मिनिस्ट्री के तहत वो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं। वो उन बच्चों के लिए रहेंगे जो कि 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या वो 12वीं पास है, उस लेवल के बच्चों के लिए हमारा वो सिस्टम है जहां बच्चे प्रॉपर एक डिप्लोमा ले लेते हैं, डिग्री लेते हैं, उनके लिए हम ये वाला प्रोग्राम अप्रेंटिस